Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare। আচ্ছা, আমি এমনি প্রথম বলছি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। আজকে যে অধ্যায়টা পড়ানো হবে সেটা হচ্ছে ষষ্ঠম অধ্যায় ধ্যান যোগ, শ্লোক নম্বর 35। ঠিক আছে। আচ্ছা, কালকে যেটা পড়ানো হয়েছিল সেটা হচ্ছে 34 নম্বর শ্লোক, আজকে হচ্ছে 35। কালকে অর্জুন কোশ্চেন করেছিল যে মন চঞ্চল, আমার মনটা ঠিক হচ্ছে না, তো আমি সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছি, তুমি আমাকে কোশ্চেনের উত্তরটা দাও। তো ভগবান তার উত্তরটা এখন দিচ্ছেন যে ধ্যান যোগে, ষষ্ঠম অধ্যায় ধ্যান যোগ, শ্লোক নম্বর 35। শ্রী ভগবান বাচো অসংশয় মহাবাহ মনো দুর্নিগহম চলম অভ্যাসেন তু কন্তীয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। অসংশয় মহাবাহ বলো, মনো দুর্নিগহম চলম অভ্যাসেন তু কন্তীয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। অসংশয় মহাবাহ মনো দুর্নিগহম চলম অভ্যাসেন তু কন্তীয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। অসংশয় মহাবাহ মনো দুর্নিগহম চলম অভ্যাসেন তু কন্তীয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। ঠিক আছে, কেউ বলতে পারবে? বলো। অসংশয়ং মনোবহ মহাবাহ মনো দুর্নিগহং চলম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। অভ্যাসনে তু কন্তীয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। ভেরি গুড। অসংশয় মহাবাহ মনো দুর্নিগহম চলম অভ্যাস তো কন্তীয় অভ্যাসেন তু কন্তীয় অভ্যাসন তো কন্তীয় বৈরাগ্য চ গৃহতে। বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। অসংশয়ং মহাবাহ মনো দুর্নিগ্রহং চলম অভ্যাসেন তু কন্তীয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। বলুন। অসংশয় মহাবাহ মন দুর্নিগ্রহম চলম অভ্যাসেন তু কন্তীয় বৈরাগ্য চ গৃহতে। বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। আচ্ছা, আমি এই উচ্চারণটা আরেকবার দিচ্ছি। শ্রী ভগবান বাচো, শুনো ধ্যান দিয়ে প্রথম। শ্রী ভগবান বাচো অসংশয় মহাবাহ মনো দুর্নিগহম চলম অভ্যাসেন তু কন্তীয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। খুব ইম্পর্টেন্ট শ্লোক, ঠিক আছে। অসম স্বয়ং মহাবাহ মনো দুর্নিগহং চলম অভ্যাসেন তু কন্তীয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। ভেরি গুড, এইরকম উচ্চারণটা চাই, ঠিক আছে। ওকে, আমি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলছি, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ডই বলবে, এলোমেলো যায় না, আমি যেরকম বলছি। শ্রী ভগবান উবাচো, বলো। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, অসংশয়ম সন্দেহ নেই, মহাবাহ হে মহাবীর, মনঃ মন, দুর্নিগহম দুর্দমনীয়, চলম চঞ্চল, অভ্যাসেন অভ্যাসের দ্বারা, তু
কিন্তু কিন্তু কুন্তিও কুন্তীয় হে কুন্তি পুত্র হে কুন্তি পুত্র বৈরাগ্যেন বৈরাগ্যেন বৈরাগ্যের দ্বারা বৈরাগ্যের দ্বারা চ চ ও ও গৃহতে গৃহতে বশীভূত করা সম্ভব। বশীভূত করা সম্ভব। ঠিক আছে, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড হলে এবার আমি অনুবাদটা একবার দেখছি। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে মহাবাহ, মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কুন্তীয় ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। বুঝতে পারছো কি বলছে? আগের বারে যে কোশ্চেনটা অর্জুন করলেন, সেই কোশ্চেনের উত্তরে শ্রী ভগবান কি বলছেন যে মন অত্যন্ত চঞ্চল, খুব দুর্দমনীয়, মানে বহুত মানে মানে কি বলে যে খুব চঞ্চল আর কি মন, কিন্তু কিন্তু অভ্যাস, হরে কৃষ্ণ ব্যাটো, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা তা আমাদের একে मन के बसे नहीं आसा दरकार। ठीक है, मैं पहले थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। अच्छा, इसका मीनिंग से है, पहले मैं एक बात बोलता हूँ, इसने आज एंट्री लिया इसलिए बोलता हूँ। काल अध्याय में हम लोग देखा था 6 अध्याय में 34 नंबर श्लोक, ठीक है, 6 स्कंद 34 नंबर श्लोक में चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमाति बलवद्रुरम तत्सहम निग्रह मन्ये वायोरिव च दुष्करम। अर्जुन ने कृष्ण को क्वेश्चन कर रहे, हे कृष्ण, ये जो मन है बहुत चंचल है, इधर उधर भाग रहे, विक्षिप्त तो है, बलवान पावरफुल भी है, वायु को मैं दमन कर सकता हूँ क्योंकि मन को दमन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर में भगवान ने भी बता रहे 6 अध्याय 35 नंबर श्लोक, श्री भगवान ब्राचो, भगवान ने बोल रहे क्या, असंशय महाभाव मनो दुन्नी गहम चलम अभ्यासेन तु कुंतीयो वैराग्येन च गृहते। परमेश्वर भगवान बोलले नहीं, परमेश्वर भगवान इधर बता रहे, हे अर्जुन, मन बहुत चंचल मेरे को मालूम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरे को हर चीज का बारे में मालूम है, किंतु कुंतीयो कुंती पुत्रो क्रमश अभ्यास प्रैक्टिस करो वैराग्येन च गृहते, मतलब वैराग्य द्वारा प्रैक्टिस करना कैसा पड़ेगा, जो ध्यान पूर्वक धीके धीके, तो तुम मेरा पास आ सकते हैं। तो इसका तात्पर्य मैं देखता हूँ, तो उसके बाद बोलता हूँ। অবদ্ধ মনকে সংযত করার কঠিনের কথা যে অর্জুন ব্যক্ত করেছিলেন তা ভগবান তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান এটিও জানিয়ে দিলেন যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তা করা সম্ভব। সেই অভ্যাসটি কি, বর্তমান যুগে তীর্থবাস, পরমাত্মা ধ্যান, মন ইন্দ্রিয়গুলি নিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য পালন, একাকী অবস্থান আদি কঠোর বিধি নিষেধ পালন করা সম্ভব নয়। তবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করার ফলে নববিধা ভগবত ভক্তি সাধন হয়ে থাকে। এই ভগবত ভক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গ হচ্ছে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ। अभी तात्पर्य में भगवान ने बता रहे, जो मन, हे अर्जुन, मन बहुत चंचल है, ठीक है, तो ये मैं स्वीकार किया। अभी भगवान ने यही बात बता रहे, जो अभ्यास करना पड़ेगा। क्या अभ्यास करना पड़ेगा? एक कली युगों में ये अभ्यास बहुत कठिन है। ये वर्तमान युगों में तीर्थवास बोलेगा तो हम लोग जो तीर्थों में जाता है, वो बनारस, क्या मथुरा, वृंदावन जो है उसको तीर्थ बोलता है, तीर्थधाम, हाँ, तीर्थस्थान धाम। वहां जाके बसवास करना पड़ेगा। बसवास कैसे करेगा? काम तो एक जगह पे है, बसवास और कैसे करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए परम धाम वो मन इंद्रियगुली निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, कोई है ब्रह्मचर्य पालन करता है। ब्रह्मचर्य पालन अभी नहीं, ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग संसार में है, हम लोगों को पिताजी है और माताजी है और पुत्र है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य पालन, अकेला कठोर विधि नियम पालन संभव नहीं है। कैसा? वो पहाड़ में जाके ध्यान करना। अभी कली युग में इतना कठोर तपस्या का जरूरी नहीं है। तो एक हम लोगों को करना पड़ेगा क्या? कृष्ण भावनामृत अनुशीलन,
हरे कृष्ण महामंत्रों का जप करना पड़ेगा। और उसका पहला मीनिंग सारा है श्रवण, कृष्ण कथा श्रवण। जैसा हम लोग क्लास में आया, पहले क्या करता हूँ, पहले सुनता हूँ, उसका बाद बोलता हूँ। ठीक है, पहले हम लोगों को काम क्या होता है, प्रथम उसका फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है श्रवणम, मतलब सुनने का। उसका बाद जो क्वेश्चन है वो करने का, जवाब देना। अच्छा ठीक है। उसका बाद आ रहा है मन के समस्त भ्रांति ও অনর্থক থেকে শুদ্ধ করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পন্থা। কৃষ্ণ কথা যত বেশি শ্রবণ করা যায় তো মন ততই প্রবুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ বিমুখ বিষয়ে অতি অনাসক্ত হয়। কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল কার্যকলাপ থেকে মনকে অনাসক্ত করার ফলে সহজেই বৈরাগ্যের শিক্ষা লাভ করা যায়। বৈরাগ্য মানে হচ্ছে জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি এবং ভগবানের প্রতি আসক্তি। কৃষ্ণ লীলায় মনকে আসক্তি করার থেকে নির্বিশেষ বৈরাগ্য অনেক বেশি কঠিন। বস্তুত কৃষ্ণ লীলার প্রতি আসক্তি খুবই সহজ সাধ্য, কারণ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা মাত্রই শ্রোতা তা অতি অনুরক্ত হয়। अच्छा, इसका मीनिंग बताता हूँ। हम लोगों को जो मन को कंट्रोल करने के लिए पहले हम लोगों को श्रवण करना पड़ेगा, उसका बाद जो क्वेश्चन है वो बोलने का। अभी ये जो श्रवण करने का जो प्रयास है, कृष्ण कथा जो जितना ज्यादा कृष्ण का हम लोग गुण लीला चर्चा का बारे में बोलेगा, मन उतना पावरफुल होएगा। नहीं तो हम लोगों को दूसरा चीजों का बारे में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये मेटीरियल जगत में हम लोगों को बंधु आत्मीय स्वजन जितना सारी आपका कृष्ण विमुख होगा, मतलब कृष्ण का बारे में नहीं जाने देगा, मतलब आप कृष्ण का तरफ जाने को सोचेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा और संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, तो हम लोग को कृष्ण का सब अटैचमेंट रहेगा। अगर हम लोग थोड़ा सा भी हिल जाता हूं तो बाहर निकल जाने का चांस रहेगा, क्योंकि ये मटेरियल में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग क्या मिलेगा आपको, जो वो लोग बताएगा चलो उधर जाके थोड़ा इंजॉय करता हूँ, इंजॉय बोलेगा तो क्या, वो लोग मटेरियल में जो जो खराब चीज होगा वो उसमें से अटैचमेंट होगा और आपको भी उसमें खींचेगा, हमको विमुख करेगा। तो वैराग्य वही इसको ही कहलाया जाता है जो भगवान का नाम गुणों में अटैच होगा। उसके अभी ध्यान करने का उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम करेगा, 16 माला जप करेगा और कृष्ण प्रसाद लेगा और सत्संग करेगा, यही है अटैचमेंट। और ये छोड़ के हम लोग जो अलग तरफ के मन भगाएगा तो हम लोग उधर भी चले जाएगा, भगवान उसमें भी बुद्धि प्रदान करेगा, क्योंकि आप ज्यादा पत्ती खेलने को सोचेगा, पत्ता खेलने को भी आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, आपका दिमाग उसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि हम लोगों को अच्छा चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। वही वैराग्य होगा जो अच्छा चीजों में भगवान का नाम गुणों का कीर्तन करेगा। और कृष्ण लीला, जो कृष्ण का जितना सारी लीला है वो श्रवण करने का, कानों से सुनने का, हाँ सुनने का। उसका बाद आ रहे कारण কৃষ্ণ লীলার প্রতি খুবই সহজ সাধ্য, কৃষ্ণ লীলার প্রতি খুবই সহজ সাধ্য। আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার মাত্রই শ্রোতা তার প্রতি অনুরক্ত হয়। এই আসক্তিকে বলা হয় পরে সানুভব বা পারমার্থিক তৃপ্তি। এই অনুভূতি অনেকটা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ঘূর্ণি বৃত্তি রূপ তৃপ্তির মতো। ক্ষুধার সময় যতই ভোজন করা যায় হয় ততই তৃপ্তি ও শক্তি অনুভূতি হয়। ঠিক তেমনি ভক্তির প্রভাবে মন বিষয় শক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে এক অপ্রাকৃত তৃপ্তি অনুভূতি হয়। এই পদ্ধতি অনেকটা সুদক্ষ চিকিৎসা এবং উপযুক্ত আহারের দ্বারা রোগ নিরাময় করার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা শ্রবণ করা হচ্ছে উন্মত্ত মনের সুদক্ষ চিকিৎসা এবং কৃষ্ণ প্রসাদ হচ্ছে ভবরোগ নিরাময়ের উপযুক্ত পন্থা। কৃষ্ণ ভাবনামৃত পন্থা হলো এই চিকিৎসা। दोस्तों अच्छा, इसके बाद मैं बताता हूँ हम लोगों का जो
ये जो भगवान ने जो बता रहे, जो हम लोगों को जो कृष्ण का बात ज्यादा सुनेगा, उसका नाम लीला इतना सारी जो सुनेगा, तो हम लोगों को अंदर से एक मतलब अच्छा फीलिंग्स होगा, ठीक है, सुकून मिलेगा। हाँ सुकून मिलेगा। तो इसका उसका बाद मैं बताता हूँ, जैसा हम लोगों को बहुत सारी भूख लग जाता है, तो भूख लगने का साथ साथ हम लोग को खाने को भोजन में बैठ जाता है, उसमें भी एक तृप्ति होता है, मतलब क्या, हम लोग को मन को संतुष्ट मिलता है। तो उसका बाद तो हम लोगों को जैसा कोई आदमी को बीमार होता है, दुख को चिकित्सक जो होगा उसका पास हम लोगों को जाना पड़ता है। तो वो लोग क्या बताता है, जो ऐसा ऐसा हम लोगों को चिकित्सा का जो जो बारे में है वो खाएगा, औषध देगा, जो दवाई देगा, तो हम लोगों को धीरे धीरे वो दवाई का बारे में हम लोगों को बीमार धीरे धीरे चला जाएगा। तो हम लोगों को जो जैसा सुदुख को चिकित्सक का बारे में भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए, वैसा ही कृष्ण भावनामृत में जो पंथ है, गुरु है, कौन अच्छा गुरु हो सकता है, हम लोगों को ऐसा धीरे धीरे मालूम होना चाहिए। कैसा मालूम होगा, जो सत्संग करना पड़ेगा, इधर उधर मन को इधर उधर भागना नहीं देना चाहिए, जो सत्संग में अटैच होना पड़ेगा। सत्संग में अटैच होगा तो ओके, सत्संग में अटैच होना पड़ेगा, तो हम लोगों को जो भव रोग है, जो बीमार है, हम लोगों का अंदर का जो बीमार है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो हम लोगों को भगवान का जो जाने के लिए जो रास्ता है क्लियर होते जाएगा। उसका बाद भगवान ने जो बता रहे कृष्ण प्रसाद शोभन, सॉरी कृष्ण प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, वो प्रसाद लेगा भी हम लोगों को मन का अंदर से जो कोलूस है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, बाहर आएगा। तो इसका मीनिंग्स है, जो चिकित्सक के पास हम लोग जो जाता हूँ, उसमें जो जो बीमारियां है उसको हम लोग बताता हूँ। और अगर हम लोगों को मनो का अंदर जो बीमार है उसको कैसे निकालना चाहिए, तो वही बात इस श्लोक में बता रहे। तो हम लोगों को पहले कानों से सुनना चाहिए, उसका बाद हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और भगवान का लीला, गुणों का लीला शोभन करना चाहिए। तो शोभन करेगा तो हम लोगों को धीरे धीरे भगवान का तरफ ध्यान रहेगा, और कृष्ण प्रसाद का जो गुण है वो भवरोह का विशेष मतलब इसका इंपॉर्टेंट दिया गया, इसलिए जो हम लोगों को जियोबा है, जियोबा के कंट्रोल करना पड़ेगा पहला, जीव जो बोलता है, जियोबा जीव जो बोलता है, इसलिए कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हम लोग बात करेगा उसका भी धीमी गति, कैसे हम लोग बात करना चाहिए। जैसा हम लोग अभी इधर बैठे हैं, उस दिन भी मैं श्लोक में बताया था, जो क्या बोला था, जो वो श्लोक में मालूम नहीं हो रहा है, अच्छा जो भी हो, वो श्लोक में क्या बताया था, जो अगला दिन में जो हाँ धीरे धीरे कैसा बात करना चाहिए, हाँ तो उसमें तो हम लोगों को क्या होगा, जो जो गुरु होगा बस सत्संग में जो बात करेगा उसका साथ कैसे कैसे बात करेगा, तो धीरे धीरे हम लोगों को वो पहले उसका बात सुनना है, उसके बाद में धीरे धीरे उससे नीची आवाज में बात करना। तो वही इसमें भी वही बात आ रहा है, जो कैसा कैसा बात करने का और कैसा कैसा चलने का, और कृष्ण प्रसाद लेने का, ठीक है। अभी ये श्लोक में इतना ही बताया गया। ये श्लोक जो है, असम स्वयं महाभाव मनोदुन्नी गहम चलम अभ्यास न तु कुंत्यो वैराग्य न चौगिहते, ठीक है। हम लोगों को पहले ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, पहला हरि नाम का नाम जप करना पड़ेगा। उसका बाद हम लोगों को सत्संग का अटैच रहना पड़ेगा। सत्संग अटैच रहेगा तो धीरे धीरे हम लोग को हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है, क्या करना नहीं करना। जैसा अर्जुन ने अभी पूछा, भगवान ने बता रहे जो तुम अभ्यास करो, पहले प्रैक्टिस करते करते तो धीरे धीरे ऊपर आएगा। भगवान ने वो भी धीरे धीरे बताता है, जो अगर कोई काम होता है जो हम लोगों को प्रैक्टिस में नहीं होता है, तो क्या होता है, हम लोगों को जो मंदिर होता है, पहले मंदिर मार्जन करेगा, मतलब परिष्कार परिच्छन्न करेगा, वो भी एक काम है भगवान का। उसका बाद और भी थोड़ा थोड़ा काम होता है, जैसा भगवान का प्रसाद चढ़ाना है, और भी थोड़ा थोड़ा। उसका बाद धीरे धीरे हम लोग को भगवान का साथ अटैच होना पड़ेगा, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, এটা তো আগে যেটা বললে তো আগে শোনা হয়েছে। এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, अभी बोलो, एनी क्वेश्चन কিছু আছে?
কোশ্চেন যখন আসবে তখন জানবো কিছু শিখেছি, তার আগে আমরা নিরক্ষর শূন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আগের হপ্তার জন্য, ঠিক আছে, আগের হপ্তার জন্য আমি দুটো শ্লোক দেবো। সেই শ্লোক দুটো শনিবার আর রবিবার থাকবে, ঠিক আছে। ওটা হচ্ছে পুরুষোত্তম যোগের, আমরা পুরুষোত্তম যোগটা খোলো 15 অধ্যায় না? 15 অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগটা খোলো। 600 কত পেজ ছিল? 623 আছে, 23 আর 21 621। अच्छा मैं ওটা বলে দিচ্ছি খালি একবার, अगला हफ्ता के लिए, ठीक है। কত নম্বর শ্লোক? পুরুষোত্তম যোগ 15 অধ্যায়, ঠিক আছে, 621 নম্বর পেজ, শ্লোক নম্বর 6। খুলে আছি। ওকে, ওটা আলাদা হবে। আলাদা হবে। ছ নম্বর। আচ্ছা প্রথমে আমি বলছি, তারপর তোমরা একটুখানি দেখে নেবে খালি। আচ্ছা 15 অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগ, শ্লোক নম্বর 6। ন তদ ভাসয়তে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবকহ যদ গত্তা ন নিবর্তন্তে तद्धाम परमम मम। अच्छा ठीक है, पर उसका बाद भी बोलता हूँ। न तद भाषाते सूर्यो न शशांको न पावकः जद गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ। अच्छा पहले बांग्ला में, যেখানে গেলে আর এই জড়জগতে ফিরে আসতে হয় না, আমার সেই পরম ধামকে सूर्य चंद्र अग्नि व विद्युत आलोकित करे ना। इसका मीनिंग्स है, भगवान ने बता रहे मतलब गोलोक वृंदावन जो है भगवान का जो धाम है, उधर ऐसा सूरज चंद्र अग्नि विद्युत इसका कोई जरूरी नहीं है, उधर ऑटोमेटिकली हर चीजों का बंदोबस्त है। ये श्लोक में बता रहा है। ये है पुरुषोत्तम योग। अभी जो महीना चल रहा है पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, ठीक है। ये पुरुषोत्तम महीना में ये श्लोक इसलिए दिया जा रहा है जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए पुरुषोत्तम योग में क्या क्या भगवान ने बताया। ओके, उसका बाद मीनिंग, उसका बाद मैं 7 नंबर श्लोक देता हूँ संडे के लिए। दूसरा मामे वंशो जीव लोके जीव भूताओ सनातन मनो षष्टा इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मामे वंशे जीव लोके जीव भूताः सनातनः मनः षष्टा इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। अनुवाद में मैं देखছি এই জড়জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ জড় প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ 6টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃত রূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্राम করছে। ठीक है, मैं इसके मीनिंग्स बताता हूँ। ये जो मेटीरियल जगत है, ये जड़ जगत है, एक एक आध्यात्मिक भगवान का बारे में जो हम लोग बात करते हो बा ऊपर का जो स्टेज होता है। और जड़ बोलेगा तो ये वर्ल्ड है जो हम लोग जो अभी बसवास कर रहे पृथ्वी है। तो इसमें जीव समूह सनातन विवंश, हम लोगों को जो सनातन सबसे पुरानो योग भगवान जो बताया ये सनातन धर्म है। जड़ जगत में प्रकृति में हम लोगों को जो मतलब जीव है ये 6 मतलब प्रकृति का 6 और माने इंद्रियों को द्वारा एक कठोर संग्राम चल रहा है। मतलब हम लोग काम कर रहा हूँ और दूसरा जैसा सारी है, पंचम इंद्रिय है ना, पंचम इंद्रिय का जैसा जैसा है वो 6 इंद्रियों का जो मतलब 6 इंद्रियों के बारे में इसमें बताया गया। तो कठोर संग्राम हम लोग करते जा रहा हूँ, तो इसका मीनिंग में बाद में आएगा। तो ये जो संग्राम चल रहा है इसका बारे में भगवान ये श्लोक में बताएगा, ठीक है। तो उस काल शनिचार को 6 और 7 नंबर श्लोक